गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की जो क्लास है लेक्चर 23 के अंदर अपन बात करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा पार्ट 2। दिस इज द सेकंड क्लास ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। इन फर्स्ट क्लास वी यूज व्हाट इज द एक्सेप्शन एंड हाउ टू हैंडल exceptions and what is the advantage to use exception handling in Java and other programming language. So now this class we study about the exception handling part 2. In this class we use practical aspects of exception handling and what is the difference between throws and try, catch वगैरह related all the matters we use in this lecture. Now we start. First, we read what is the exception handling in Java. If an exception occurs which has not been handled by the programmer. What is not been handled by the program? If any exception which come, which occur did handle by programmer, जो programmer से handle नहीं हो सकती, program execution get terminate. If execution is terminated or program is also the terminated, so we use exception handling to program not terminated and execution is run slowly. Okay, so if the exception occur which has not been handled by the programmer, then program execution gets terminated and a system generated errors message is shown to the error. Two types of the error. First is the system generated error and other is the user defined the error. User defined error which is user make, user show the message in error in occur, and system error, system show the error according to the exceptions in system. Now we start again. First we use the exception handling practical. Now in this example we have class Java exception example. This is the program name or save this name in the program. अब now एक वेरिएबल या इंटीजर डेटा इक्वल टू 100 divided by 0. दिस इज द अनदर एक्सेप्शन. दिस इज द अर्थमेटिकल एक्सेप्शन. इन दिस ट्राई, this is the part of try where we write the code we have, and next is the catch. Catch is the exception part. This is the arithmetical exception and this is the print. If exception come, then what is the output show, या what is the message show. This is the exception handling. System dot out dot println e मतलब this is the system generated error या system generated exceptions message show in this program, and this is the user defined error message, rest of the code. Now what is the output? Exception in thread main dot java dot lang dot arithmetical exception. क्यों? क्योंकि we use 100 divided by 0. अगर आप 100 divided by 0 करते हैं तो what is the output? Is the infinite, and infinite is no one in the mathematics. So exception in thread main java dot lang dot exception by the 0. In the above example 100 by 0 rise an arithmetical. क्या है, किस टाइप की एक्सेप्शन है? अर्थमेटिकल टाइप एक्सेप्शन विच इज हैंडल्ड बाय ट्राई और कैच. दिस इज द ट्राई वेयर वी पुट द कोड विच वी यूज इन एक्सेप्शन हैंडलिंग, and this is the another part. This is the catch part. Catch मतलब here we write what is the message या what is the process after the if exception is come. अब कॉमन जावा एक्सेप्शन में कौन कौन सी एक्सेप्शंस है जो कॉमनली जो यूज होती है किसमें? जावा के अंदर. फर्स्ट इज अर्थमेटिक एक्सेप्शन. अर्थमेटिक एक्सेप्शन मतलब if any exception related to arithmetical calculations, this is come in this category. If we divide any number by 0, those occur arithmetic exception. कब? जब अगर आप किसी वैल्यू को डिवाइड बाय 0 करते हैं, डिवाइड बाय किसी नंबर को 0 करते हैं तो क्या होता है? अर्थमेटिकल एक्सेप्शन आती है. दिस इज इंटीजर a इक्वल टू 50 बाई dy. दिस इज द अर्थमेटिकल एक्सेप्शन. सेकेंड, नल पॉइंटर एक्सेप्शन.
null pointer exception if we have a null value in any variable, if we have a null value, this is the null value in any variable performing any operation on the variable, throw a null pointer exception. If we read string s is the string type of the data type equal to null, तो s डॉट लेंथ करेंगे तो लेंथ क्या आएगी, क्यों, क्योंकि s के अंदर अपन ने कोई वेरिएबल या कोई स्ट्रिंग पास नहीं करी है, तो s डॉट लेंथ के अंदर क्या आएगी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगी. दिस इज द नल पॉइंटर एक्सेप्शन. सेकेंड, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन. द रॉन्ग फॉर्मेटिंग ऑफ एनी वैल्यू में ऑक्योर नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन. नंबर फॉर्मेट अगर आपके नंबर का फॉर्मेट जो है, एक साइड स्ट्रिंग है एक साइड इंटीजर है, नॉट मैचिंग है, तो क्या आएगी, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आएगी. द रॉन्ग फॉर्मेटिंग ऑफ एनी वैल्यू में ऑक्योर नल फॉर्मेट एक्सेप्शन. जैसे स्ट्रिंग एस इक्वल टू ABC और इसमें मैं इंटीजर में चेंज कर रहा हूं किसको, एस को. एस क्या है, स्ट्रिंग टाइप का फॉर्मेट है और किसमें कोशिश कर रहा हूं मैं इसको इंटीजर में पार्स करने की, चेंज कन्वर्ट करने की कर रहा हूं, तो दिस इज द नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन. नेक्स्ट इज एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड. एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड मतलब अगर एरे की जो इंडेक्सिंग से बाहर जाके आप किसी वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड. इफ यू आर इंसर्टिंग एनी वैल्यू इन द रॉन्ग इंडेक्स, इफ यू आर इंसर्टिंग एनी वैल्यू इन द रॉन्ग इंडेक्स, इट शुड रिजल्ट द एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड. जैसे इंटीजर a इक्वल टू न्यू इंटीजर, ठीक है, और साइज कितनी है 5, मतलब इट हैव 5 वैल्यूज, ठीक है, तो a10 इक्वल टू 50. a10 इज द आउट ऑफ बाउंड्री, तो दिस इज द एरे इंडेक्स ऑफ आउट बाउंड एक्सेप्शन. तो दिस इज द कॉमन एक्सेप्शन हैंडलिंग विच यूज इन जावा. नाउ वी टॉक अबाउट जावा ट्राई कैच ब्लॉक. जावा ट्राई कैच ब्लॉक ना, जैसे अपन ने एग्जांपल में देखा था कि जो कोड को अपने को यूज करना है वो ट्राई में लिखेंगे और जो रिजल्टेंट पार्ट है, जो मैसेजिंग पार्ट है, वो किस में लिखेंगे, कैच. तो जावा ट्राई ब्लॉक इज यूज टू इनक्लोज द कोड दैट माइट थ्रो एन एक्सेप्शन. क्या है, जो थ्रो करेगा किसको, एक्सेप्शन को. थ्रो बाय एक्सेप्शन, थ्रो an exception. It must be used within the method. If an exception occur at the particular statement of the try block, the rest of the block will not execute. अगर try block के अंदर particular किसी exception आ जाती है, if an exception occur at the particular statement of the try block, the rest of the block code will not execute. So it is recommended not to keeping the code in try block that will not throw an exception. Java try block must be followed by either catch और finally. ट्राई ब्लॉक के साथ में क्या आएगा, या तो कैच आएगा या फाइनली वर्ड यूज होगा आपको. तो दिस इज द ट्राई एंड कैच एक्सेप्शन. सिंटैक्स क्या है, ट्राई कोड दैट थ्रो एन एक्सेप्शन, और कैच के अंदर क्या लिखेंगे, एक्सेप्शन का नाम और उससे रेफरेंस वगैरह. ऐसे ट्राई के अंदर कोड लिखेंगे और फाइनली कि भाई अगर मेरा कोई मैसेज प्रिंट नहीं हो तो ये प्रिंट हो जाए. अब जावा कैच ब्लॉक. जावा कैच ब्लॉक इज यूज टू हैंडल द एक्सेप्शन बाय डिक्लेयरिंग द टाइप ऑफ एक्सेप्शन विद इन द पैरामीटर. जावा कैच ब्लॉक इज यूज टू हैंडल द एक्सेप्शन बाय डिक्लेयरिंग द टाइप ऑफ एक्सेप्शन विद इन द पैरामीटर. द डिक्लेयर एक्सेप्शन मस्ट बी इन बाय द पेरेंट क्लास एक्सेप्शन or the generated exception type. The catch block must be used after the try block only. You can use multiple catch block within a single try block. के साथ में आप multiple catch भी लिख सकते हैं, multiple try भी लिख सकते हैं, multiple catch भी यूज कर सकते हैं. अब एक एग्जाम्पल देखते हैं किससे रिलेटेड, ट्राई कैच ब्लॉक से. देखिए एक क्लास ली एग्जाम्पल नाम से, दिस इज द क्लास, जावा क्लास, वेरिएबल ये इंटीजर नम और num2. अब ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा कि num इक्वल टू 0 और num2 इक्वल टू 62 लिख दिया. num इक्वल टू 0, num1 इक्वल टू 0 ले लिया और num2 इक्वल टू 62 ले लिया. अब अगर अपन प्रिंट करते हैं तो क्या रिजल्ट प्रिंट होगा, दिस इज द सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन num2 को प्रिंट करेंगे, ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में आई इन द एंड ऑफ द ब्लॉक आएगा.
फिर कैच लिखा अपन ने, ये देखिए यहाँ क्या लिखा, num2 इक्वल टू 62 डिवाइड बाय num1, दिस इज द अर्थमेटिकल एक्सेप्शन, 62 डिवाइड बाय num1। यहाँ कैच लिखा, कैच में अर्थमेटिकल एक्सेप्शंस को पास किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यू शुड नॉट डिवाइड ए नंबर बाय 0, दिस इज द मैसेज, यूजर डिफाइंड मैसेज है, यू शुड नॉट डिवाइड ए नंबर बाय 0। सेकेंड, अगर ये एक्सेप्शन के अंदर कैच नहीं होता है तो क्या होगा, सेकेंड कैच के अंदर जाएगा, कैच के अंदर अपने लिखा एक्सेप्शन इज नॉट हैंडल बाय द प्रीवियस, अगर हो तो क्या लिखेगा, एक्सेप्शन ओक्योर, अगर वहां हैंडल नहीं होती है तो, अगर हैंडल हो जाएगी तो यहीं से आपका आउटपुट बाहर आ जाएगा, प्रोसेस बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर हैंडल नहीं होती है तो ये हो जाएगा। और लास्ट में अपन ने प्रिंट कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में आउट ऑफ ट्राई कैच ब्लॉक, ठीक है। तो ये आपका एक प्रोग्राम है जो किससे रिलेटेड है, ट्राई और कैच ब्लॉक से रिलेटेड है। अब नेस्टेड, जैसे पहले बात हुई थी, व्हेन ए ट्राई कैच ब्लॉक इज प्रेजेंट इन अनदर ट्राई कैच ब्लॉक देन इट इज कॉल्ड द नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक। क्या है, व्हेन ए ट्राई कैच ब्लॉक इज प्रेजेंट इज अनदर ट्राई ब्लॉक देन इट इज कॉल्ड द नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक कहते हैं। इफ neither catch block nor present catch block handle exception then the system generated message should be shown for the exception। अगर एक से हैंडल नहीं होती तो अपना दूसरा ट्राई कैच यूज कर सकते हैं, फिर तीसरा कर सकते हैं, जब तक कि आपकी एक्सेप्शंस जो हैं वो हैंडल नहीं हो जाए। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, सिंटेक्स है, जैसे इज द ट्राई, दिस इज द मेन ट्राई, इसके अंदर आपने स्टेटमेंट लिखे, फिर दूसरा ट्राई यूज किया, फिर तीसरा ट्राई यूज किया, फिर ये पहला कैच है, ये दूसरा ये कैच है, फिर तीसरा ये कैच है। तो इस तरीके से नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक को भी आप यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं जावा फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक क्या होता है, ए फाइनली ब्लॉक contain all the crucial statement that must be executed whether the exception occur or not। यहाँ क्या लिखते हैं, देखिए सबसे वैल्यूबल चीज है ये, थोड़ा सा समझने की, कि whether exception occur or not। आपको कोई मैसेज ऐसा प्रिंट करना है कि चाहे एक्सेप्शन आए या नहीं आए, कुछ ना कुछ मैसेज या कुछ ना कुछ आउटपुट आना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उसको फाइनली ब्लॉक के अंदर लिख देते हैं। The statement present in this block will always executed। क्या होता है कि इसमें आप जो लिखोगे वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा, चाहे आपके प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज हो रही हो या एक्सेप्शन हो या नहीं हो। The statement present in this block will always executed regardless whether exception occur in try block or not such closing connection। जैसे ट्राई में लिखा, ट्राई के बाद में कैच यूज किया, और कैच के बाद में नाउ हिज द फाइनली ब्लॉक कंटेन ऑल द क्रूशियल स्टेटमेंट दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड वेदर एक्सेप्शन ऑक्योर और नॉट। द स्टेटमेंट प्रेजेंट इन दिस ब्लॉक विल ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। क्या होता है कि इस ब्लॉक के अंदर आप जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं वो हमेशा ही एग्जीक्यूट होते हैं, ऑलवेज एग्जीक्यूटेड होते हैं, है ना। जैसे ट्राई, ट्राई के बाद में कैच, और कैच के बाद में फाइनली, कि बच्चे एक्सेप्शन आएगी तो भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर नहीं आएगी तो भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। दिस इज द एग्जांपल में देखते हैं, एक क्लास ली है, पब्लिक क्लास, अपन ने एक वेरिएबल लिया इंटीजर नम इक्वल टू 121.0 कर दिया, मतलब अर्थमेटिकल एक्सेप्शन आ गई। अर्थमेटिकल एक्सेप्शन अगर पहले यहाँ जाएगा आपका प्रोसेस ट्राई के बाद में कैच के अंदर आया, अगर एक्सेप्शन आ रही है तो, फिर फाइनली ब्लॉक आया, फाइनली ब्लॉक में अपन ने लिख दिया कि भाई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर दिस इज द फाइनली ब्लॉक, और आउट ऑफ, मतलब सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, ये मैसेज प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि एक्सेप्शन तो आएगी, अपन ने 121.0 लिखा है, फिर फाइनली ब्लॉक के अंदर आएगा दिस इज द फाइनली ब्लॉक, और इसके बाद में क्या आएगा, नेक्स्ट जो आउटर ब्लॉक है उसमें आपने लिखा आउट ऑफ कैच फाइनली, दिस इज द लास्ट फाइनल। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि फाइनली ब्लॉक अपन को कहाँ यूज करना है और कहाँ नहीं यूज करना है। ए फाइनली ब्लॉक मस्ट बी एसोसिएट विथ ए ट्राई ब्लॉक। किसके साथ एसोसिएट होता है, ट्राई ब्लॉक के साथ में।
यू कैन नॉट यूज फाइनली विदाउट ए ट्राई ब्लॉक। अगर आपने ट्राई यूज किया है उसी के साथ आप फाइनली यूज कर सकते हैं। अगर आपने ट्राई ब्लॉक, विदाउट ट्राई ब्लॉक आप इसको यूज नहीं कर सकते। यू शुड प्लेस दोज स्टेटमेंट इन द ब्लॉक दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड ऑलवेज, कि ऑलवेज एग्जीक्यूट करना हो जिन स्टेटमेंट को, वो अपन फाइनली ब्लॉक में लिखते हैं। दिस इज द ऑप्शनल। इन नॉर्मल केस क्या है, दिस इज द ऑप्शनल है ना। नॉर्मल केस व्हेन देयर इज नो एक्सेप्शन इन ट्राई ब्लॉक देन द फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट आफ्टर द ट्राई ब्लॉक। अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं आती है तो उसके बाद में क्या होगा, कैच ब्लॉक में नहीं जाएगा, वो सीधा किस पे जाएगा, फाइनली पे जाएगा। हाउएवर इफ एन एक्सेप्शन ऑक्योर देन द कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद में फाइनली पे जाएगा। क्या है, पहले ट्राई आता है, फिर कैच आता है, फिर फाइनली आता है। अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन आएगी तो क्या करेगा, सीधा वो कैच ब्लॉक पे जाएगा और कैच के बाद में वो फाइनली पे आएगा। लेकिन अगर एक्सेप्शन नहीं आती है तो कैच पे नहीं जाएगा, वो सीधा एक्सेप्ट किस पे जाएगा, फाइनली ब्लॉक के ऊपर जाएगा और उसके अंदर आपने जो भी मैसेज दिए हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। एन एक्सेप्शन इन द फाइनली ब्लॉक बिहेव एग्जैक्टली लाइक एनी एक्सेप्शन। द स्टेटमेंट प्रेजेंट इन द फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट even if the try block contain control transfer statement like return, break और continue जैसे काम करते हैं उसी तरीके से आप यहाँ भी काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं जावा थ्रो एक्सेप्शन की। थ्रो दो चीजें आती है जनरली, थ्रो आता है, थ्रोन आता है ना। द थ्रो जाता है, द जावा थ्रो कीवर्ड इज यूज एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन, कि आपको अगर एक्सप्लिसिटली थ्रो करनी हो एक्सेप्शन को। वी कैन थ्रो आइदर चेक्ड और अनचेक्ड, जैसे पहले बात हुई थी पहली की क्लास में कि अपन दो तरह की एक्सेप्शन, चेक्ड होती है, अनचेक होती है। तो वी कैन थ्रो आइदर चेक्ड और अनचेक एक्सेप्शन इन द जावा बाय द थ्रो कीवर्ड। द थ्रो कीवर्ड इज मेनली यूज टू थ्रो कस्टम एक्सेप्शन को अगर आपको शो करना हो तो उसके लिए अपन थ्रो कर सकते हैं। थ्रो एक्सेप्शन एग्जाम्पल क्या होता है, थ्रो न्यू इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, सॉरी डिवाइस इज एरर। अगर इनपुट आउटपुट रिलेटेड एक्सेप्शन आएगी तो एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा, सॉरी डिवाइस एरर आपको। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि एक यूजर है, उसकी एज अगर इफ एज इज लेस देन 18 है तो थ्रो क्या करे, अर्थमेटिकल एक्सेप्शन नॉट वैलिड लिख के कर दे। अगर हो 18 से ज़्यादा तो वेलकम टू वोट लिख दे। कब, लेस देन 18 हो तो मैसेज प्रिंट हो जाए और ये हो जाए। तो वैलिडेट 13 लिखेंगे तो 13 इज द लेस देन, तो क्या लिखेगा, एक्सेप्शन आएगी और क्या लिखेगा, नॉट वैलिड लिख देगा। तो इस तरीके से आप थ्रो जो है उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा थ्रोज कीवर्ड होता है, जावा थ्रोज कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर इन एक्सेप्शन। किस है, एक्सेप्शन को डिक्लेयर करने के काम में आता है। इट गिव्स एन इंफॉर्मेशन टू द प्रोग्रामर दैट देयर में occur an exception, so it is the better for programmer to provide the exception handling code so the normal flow। क्यों, क्योंकि अगर एक्सेप्शन के बाद में अगर आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है तो दिस इज नॉट ए गुड प्रोग्रामर। आपको क्या करना है, एक्सेप्शन को, जो भी एक्सेप्शंस हैं उनको हैंडल करना है और नॉर्मल फ्लो में आपका प्रोग्राम चलना चाहिए। एक्सेप्शन हैंडलिंग इन मेनली यूज टू हैंडल द चेक्ड, क्या करती है एक्सेप्शन हैंडलिंग, चेक्ड एक्सेप्शंस को होती है। इफ देयर ऑक्योर एन अनचेक्ड एक्सेप्शन, जो नल पॉइंटर एक्सेप्शंस वगैरह हो सकता है ना। सिंटेक्स क्या होगा, रिटर्न टाइप, मेथड नेम, थ्रो एक्सेप्शन, क्लास नेम, मेथड का कोड जो है वो अपन यहाँ लिखेंगे। एडवांटेज क्या है, थ्रो को यूज करने के एडवांटेज क्या होते हैं। नाउ चेक्ड एक्सेप्शन कैन बी प्रोपोगेट फॉरवर्ड इन कॉल स्टैक में जाती है, तो इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द कॉलर टू द मेथड अबाउट द एक्सेप्शन, इसलिए अपन थ्रोज का यूज करते हैं। अब बात करते हैं क्या क्या डिफरेंस है थ्रो एंड थ्रोज के अंदर। जावा थ्रो कीवर्ड इज यूज टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन, और थ्रोज क्या होता है, जावा थ्रोज कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर एन एक्सेप्शन। क्या करता है, ये तो क्या होता है, यूज टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन, थ्रो करना हो एक्सेप्शन को और ये डिक्लेयर करना हो एक्सेप्शन को। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। चेक्ड एक्सेप्शन कैन नॉट बी प्रोपोगेट यूजिंग थ्रो, और चेक्ड इसके थ्रू आप कर सकते हैं थ्रो की। थ्रो इज फॉरवर्डेड बाय इंस्टेंस, थ्रो इज क्लास से रिलेटेड है, वो इंस्टेंस से है। थ्रो इज विद इन द मेथड हो सकता है, थ्रो इज यूज विद द मेथड सिग्नेचर क्लास। यू कैन नॉट थ्रो, मल्टीपल एक्सेप्शन को नहीं कर सकते, और लेकिन आप डिक्लेयर कर सकते हो मल्टीपल आपको मेथड्स वगैरह को, किसके थ्रू, थ्रोज के थ्रू। तो ये कुछ डिफरेंसेज हैं जो आप यहाँ यूज करते हो।
अब बात करते हैं, एक और चीज़ पूछ ली जाती है कई बार कि बिटवीन फाइनल और फाइनली में क्या डिफरेंस है। फाइनल इज यूज टू अप्लाई रिस्ट्रिक्शंस ऑन क्लास मेथड एंड वेरिएबल। फाइनल क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड, फाइनल मेथड कैन नॉट बी ओवरराइडन एंड द फाइनल वेरिएबल वैल्यू, मतलब फाइनल मतलब लाइक एज ए कॉन्स्टेंट। अगर आप किसी क्लास के आगे लगाते हैं, किसी वेरिएबल के आगे कराते हैं या किसी मेथड के आगे लगाएंगे तो वो क्या होगा, सीधा फिक्स हो जाएगा, मतलब कॉन्स्टेंट हो जाएगा, उसमें चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात करते हैं फाइनली। फाइनली इज यूज टू प्लेस इंपोर्टेंट कोड, इट विल बी एग्जीक्यूट आइदर एग्जीक्यूशन इन हैंडल और नॉट। अगर एग्जीक्यूशन हैंडल होती है या नहीं होती है तो आपका ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। फाइनलाइज क्या होता है, फाइनलाइज इज यूज टू परफॉर्म क्लीन अ प्रोसेस जस्ट बिफोर ऑब्जेक्ट इज गार्बेज। अगर आपको गार्बेज वैल्यूज को यूज करना है तो उससे पहले आप फाइनलाइज कर सकते हैं। दिस इज द मेथड है, फाइनलाइज मेथड है जिसको अपन यूज कर सकते हैं। नाउ थैंक्स दोस्तों आज की क्लास के लिए, जिसमें अपन ने मेनली बात करी एक्सेप्शन हैंडलिंग की, ट्राई कैच ब्लॉक की, मल्टीपल ट्राई कैच ब्लॉक की, फाइनली ब्लॉक की। थैंक यू।